دیکھیے یوں تو ہم نے بہت تحریک میں حصہ لیا، لیکن دو خصوصیات جو رہی ہیں وہ تحریک کی جو ہم نے دیکھی، ایک یہ کہ کوئی بھی جلسہ درگاہ میں ہوا وہ تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ کوئی بھی جلسہ یا آغاز اگر درگاہ سے ہوا ہے، میرے دیکھنے میں اور آزمائی کی چیز ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامیاب نہ ہو۔ اور دوسری یہ کہ انجمن ہائے ماتمی نے جس تحریک میں ساتھ دیا ہو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکامیاب ہو۔ تو میرے خیال سے آج دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک تو درگاہ میں جلسہ اور دوسرے انجمن ہائے ماتمی کی یہاں موجودگی۔ تو انشاءاللہ جو بھی تحریک یہاں سے چلی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور کامیاب ہوگی۔ ساتھ دے رہے ہیں، اچھے کا ساتھ دے رہے ہیں یا برے کے ساتھ دے رہے ہیں، موضوع یہاں پر یہ نہیں ہے کون ہے کیا ہے۔ اب اگر یہی ایک اچھے انسان ہے اور بھی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، 1,24,000 کی اولیا کے معصوم تھے، ایسا نہیں ہے۔ معقولے کا بات آگئی تو دو اشاروں میں بات ختم کرو، اپنی بات کہنا چل رہا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء معصوم تھے، یعنی کہ سب اللہ کی ہدایت کے لیے سب اللہ کو پہچانے کے لیے، لیکن یاد کس کو کیا تھا؟ امام حسین کو۔ آپ کو نہیں سب کو یاد کرنا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہندوستان کے سب کے برے انسان تھے، سب نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب نے ساتھ دیا، لیکن یاد کس کو کہتے ہیں؟ مہاتما گاندھی کو۔ ایران کے سب برے انسان تھے، سارے مراجع تھے، سب سے ساتھ میں، لیکن یاد کس کو کہتے ہیں؟ خمینی کو۔ میں ادھر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب خراب ہیں، سب اچھے انسان ہیں، لیکن میدان میں اسی کو یاد کہتا ہے جو سب سے آگے آگے موٹیویشن اپنی قربانی ادا کرتا ہے۔ ایک لاکھ ضرور آئے گا اللہ کو پہچانے کے لیے، لیکن حسین میدان میں آ کر اپنی قربانی دے کے پیش کر رہا ہے کہ میرا یہ 6 مہینے کا بچہ بھی تیرے لیے ہے، یہ اکبر بھی تیرے لیے ہے۔ اگر یہاں پر سب ہندوستانی تھے، لیکن یہاں پر مہاتما گاندھی اپنے کو ترک کرنے کا میں سب کچھ ہندوستان میں قربان کر، تو جو قربانیاں دیتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ قربانی شمار کیا جاتی ہے۔ لبیک یا حسین نہیں ہے اس ملک میں، کسی دوسرے ملک میں ہے، وہ بھی اس وقت کی اہمیت سے واقف ہے، اس وقت سے واقف، اور جو ہیں وہ بھی واقف۔ کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچ ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت جو صورتحال رئیس منزل کی ہے، دوسری جو جگہیں ہیں ان کی ہے، ان میں سے جو ایک سب سے اہم مقام، مقدس مقام ہے، جسے ہم چھوٹے امام باڑے کے نام سے عام طریقے سے جانتے ہیں، جو محمد علی شاہ کا وقف کردہ امام بارگاہ ہے، انتہائی محترم، انتہائی مقدس۔ آج وہاں کے اوپر اس جہنم کو کاٹنے کے لیے ہوٹل کھول دیے گئے ہیں، وہاں روزانہ لڑائی جھگڑے فساد، کبھی آپس میں بھڑ جاتے ہیں، کبھی دوسروں سے بھڑ جاتے ہیں، کبھی سنی شیعہ مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس وقت ابھی آپ اس جلسے کے بعد وہاں جائیے، آپ دیکھیے کہ پردے دار عورتوں کا اس پھاٹک سے اس پھاٹک تک، اس گیٹ سے اس گیٹ تک گزرنا جو ہے وہ محال ہو گیا۔ جو بے پردہ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کہیں بھی جگہ بنا لے، لیکن جو بے پردہ باپردہ ہیں، باحیا ہیں، باغیرت ہیں، ان کا نکلنا دشوار ہے۔ تو جب اس وقت صورتحال اس وقت ایسی ہے تو اب یہ بتائیے کہ ایام اعظام میں کیا ہوگا؟ جب امام باڑے کے اندر مجلسیں شروع ہوں گی، جلوس، جلسے، ماتم، مجلس، یہی سب تو امام باڑے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بھئی بزرگوں نے جو امام باڑے بنائے وہ اس جہنم کو کاٹنے کے لیے، اب ہم کیا آگے کہیں؟ یعنی جو کام کل اکبری گیٹ پہ ہو رہا تھا وہ اب ہمارے یہاں ان دونوں پھاٹکوں کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ میں نے جناب سے پرسنل شکوہ کیا کہ اس کے لیے ہمیں کہنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ اب ادھر سے گزرنا محال ہو، دشوار ہو، یہ صورتحال ہے، اور صرف یہ حسین آباد کی کوتاہی ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں، نہ ہم ذمہ دار ہیں نہ آپ ذمہ دار ہیں، ڈی ایم ذمہ دار ہیں، ایس ڈی ایم ذمہ دار ہیں،
लखनऊ के डीएम और एसडीएम जिम्मेदार, क्योंकि एक चेयरमैन है और एक सेक्रेटरी। फिर भी हम आपसे इल्तिजा करते हैं और इल्तिमास करते हैं कि जो लोग हुसैनाबाद की वक्फशुदा प्रॉपर्टी से गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एक मर्तबा आप खड़े हो जाइए, ताकि इन दोनों इमारतों का जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इनका तकद्दुस जो पामाल हो रहा है, उससे ये महफूज हो सके। दोनों फाटकों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कब ये गिर जाए कुछ पता नहीं। भूमि गेट मैं समझता हूँ 2003 से तो मैं देख रहा हूँ कि हर 2 महीने पर वहाँ पाड़ बांध दिया जाता है। 2-4 मीटर काम हुआ, उसके बाद फिर खत्म, फिर खोलो, आज 8 मुहर्रम में खोलो, कल 10 मुहर्रम में खोलो, आज नौचंदी है खोलो, और उसके बाद फिर वो बांध दिया जाता है दिखाने के लिए। ये सूरत हाल है। लिहाजा आप हजरात ने हमेशा अपनी मुकद्दस और मोहतरम क़यादत के साए में रह करके आवाज उठाई है। फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक मर्तबा उस नारे को, जो नारा करबला से बुलंद हुआ था, हल में नासिरिन यंसुरना, हल में मुगीसिन युगीसुना, उस नारे के साए में या वही नारा लगाते हुए अमली मैदान में आइए और हुसैनाबाद ट्रस्ट के जिम्मेदारान को उनकी कोताहियों की तरफ तवज्जो दिलाइए कि देखिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं। अब अगर इसके बाद भी क्यों नहीं रहता है तो फिर जो दूसरा हरबा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यही हमारी गुजारिश है कि एक बार फिर खड़े होइए जनाब की क़यादत में। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों जिस जालिम में खस्मा वालिल मज़लूम में आना है। सबसे पहले हम और आप जिन रातों से गुजर रहे हैं, ये शब क़द्र की रातें, और इसमें कुरान का नुज़ूल और 15 रमज़ान मुबारक में गुजरी है कुरान नातिक़ पर इमाम हसन मुश्तबा और धीरे धीरे हम और आप उन अय्याम से नज़दीक हो रहे हैं जो अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। जिस मकसद के तहत ये जलसा हो रहा है, ये जलसा अंजुमनों का बुलाया गया है आपका शरीयत की तरफ से, जिसके अंदर इस बात की तरफ दावत दी गई है और कौम को बेदार करने के लिए कि जो हमारे आसार हैं और जो हमारे औकाफ हैं और जो हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट हुसैनाबाद ट्रस्ट अलायंस जो है वो किस सूरत से मिटाया जा रहा है और किस सूरत से उसकी आमदनी को खुर्द की। इसलिए बगैर किसी और चीज़ों की तकलीफ ले जाए हुए अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए, बेशक जनाब सदर साहब ने जो कहा कि जो तहरीक हमने दरगाह से चलाई और दरगाह से शुरू हुई वो हमेशा कामयाबियों के हमकिरार हुई। कैसे नहीं हमकिरार होगी कि जब आप पैगंबर वफा का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे तो वफादारी जब ना होगी तो कैसे कब होगी। इसलिए वफादारियों के सत्ते में, आका के सत्ते में तहरीक आज़ादारी यही गेट था कि जहाँ के ऊपर सब बैठते थे और बैठने के बाद रात रात भर अंजुमनें बैठती थी और अंजुमन में रात रात भर बैठकर आज़ादारी की तहरीक को चलाया और चलाने के बाद यहीं से तहरीक हुई और होने के बाद आगे बढ़ी और आज़ादारी की तहरीक इसी गेट से कामयाब हुई कि जहाँ के ऊपर आज आप ये आलिशान गेट देख रहे हैं, जिसको
आप देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जुम्मनों की काविशें थी और कोशिशें हो रही थी कि किसी भी सूरत से जुलूस अज़ा को बहाली के लिए किसी भी सूरत से कुर्बानी को देकर इन जुलूस अज़ा पर जो पाबंदी नाजायज पाबंदी लगी हुई थी उसको खत्म किया जाए और हमारे जुलूस अज़ा को फिर से बरामद किया जाए और वो अलामती तौर के ऊपर जब जुलूस हमें मिले हैं, जिसके लिए हमें ये कोशिश करना चाहिए है कि बकिया जो जुलूस रह गए हैं उसकी भी तहरीक को साथ में आगे बढ़ाना। क्योंकि मुआहदे में यही लिखा कि यहाँ भी चंद है और जो बकिया रह गए उसकी कोशिश होगी, लेकिन उसके बाद जो कोशिश होना चाहिए वो कोशिश दिखाई नहीं दे रही, वो कोशिश बेसुस्ती दिखाई दे रही है कि जो बकिया धीरे धीरे जो जरूरी है और जहाँ जो लाजमी है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। आपके सामने मैंने जो कौल पढ़ा कि मौलाना मुत्तकियान गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जो आपने आखिरी वसीयत के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया था और बुलाने के बाद आपने साथ फरमाया, पूरा वसीयतनामा है, पूरा वसीयतनामा आज पढ़ने का मौजूद नहीं है, उसके मैंने सिर्फ एक जुमला आपके सामने रखा है कि हजरत इरशाद फरमा रहे हैं दोनों को जमा करने के बाद, पूरे खानवादे को जमा करने के बाद क्या सब जमा हो गए, पूरा खानवादा अली मुत्तकी मौला कायनात का जमा हो गया। जब आप पर जहर का असर पूरी तरीके से हो चुका था और आपका पसीना मोतियां बनकर चेहरा चौधरी की चांद की तरह शहादत के लिए चमक रहा और करें उस वक्त जब हाँ पूरा खानवादा जमा है, आप क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं? दोनों शहजादों को अपने पास जब जमा कर लिया तब इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन बस ये करते करते देखो ऐसा ना हो कुरान का दूसरे सब हाथ दे जाए और तुम कुरान के पीछे रह जाओ और देखो देखो अल्लाह अल्लाह नमाज ये तुम्हारे दीन का रुकन है, इसके अंदर सुस्ती ना हो और अल्लाह अल्लाह खाने खुदा को कभी तन्हा ना छोड़ देना, अगर खाने खुदा को तुमने तन्हा छोड़ दिया तो अशरात मवाली। अब यहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि बेटा हसन हुसैन हमेशा जालिम के खिलाफ रहना और मजलूम का हमेशा 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 के लिए मदद करना उसकी है। ये दो जुमले हैं आज हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, आज आप देख सकते हैं किस सूरत से हमारे औकाफ को मिटाया जा रहा है, औकाफ पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं और चोरी छुपे और किसी न किसी सूरत से उसके ऊपर नाजायज कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप छोटे इमामबाड़ी को जाकर देख लीजिए और जाने के बाद और पीछे एक बार जाकर देख लीजिए, यही पर जब तहरीक चलाई थी जनाब ने हुसैनाबाद के लिए तो हम लोग छतों के ऊपर जाकर देखा था तो जो इमामबाड़े के चारों तरफ जो रूम्स बने कमरे बने हैं, जो बड़े बड़े शाराचीन बनी हुई हैं और जो बने उन सब के ऊपर धोबियों के एंगल लगे थे और उसके ऊपर धोबियों के कपड़े लगे और कर रहे और एंटीना लगे हुए। जनाब ने हुक्म दिया कि सबको नोच दिया जाए, सबको नीचे फेंक दिया। आप और कर रहे हैं वो हालात से गुजरी है कौन? छोटे इमामबाड़ी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, जाइए आप पीछे देख लिए जाकर, हालात को आप देख लिए जाकर। भाई हमारा सिर्फ मुतालबा ये है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें दूसरों की जमीनें दे दी जाए और कह रहे हमें नमाज पढ़ने की सड़कों पर इजाजत दे दी जाए, हम नहीं कह रहे। हमारी कौम फकीर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन की मानने वाली है। ये शान अवध ने इतना बना दिया है वो और कौमें होगी फकीर कि जिनको सड़कों के ऊपर जहां जाके चंदा मांग के जमीनों की जरूरत होगी। हमारी जमीनें इतनी बड़ी बड़ी है, हमारी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बड़ी है, आज भी बड़े इमामबाड़े के अंदर चारों तरफ जितनी इसकी आराजी है अगर हमें मिल जाए तो हमारी जमीनें ज्यादा है, कौम की तादाद कम। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हमें जमीनें दे दी जाए, वहां दे दिया जाए, वहां दे दिया जाए, हमारा लिए वहां बना दिया जाए। हमारी जो प्रॉपर्टी गोल दरवाजे में है आप देखें हुसैनाबाद की, जिसमें शोरूम खुल रहे हैं, जिसके अंदर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, न जनाब ने कई बार मुतवज्जे किया, कई बार आदमियों को भेजा, कई बार आपने कहा और कर रहे हो। करने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वहां मनमानी हो रही है और मनमानी मंशाए वाकिफ के खिलाफ काम किया जा रहा है। सही है, जब शान अवध ने उसका कानून बना दिया है
کہ उसकी जो कमेटी है वो वारिसान की रहेगी, देख रेख करेगी और ये करेगी, पूरा आइन बना हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जाने की जो भी कमेटी बनेगी वो नाजायज मानी जाएगी। जो भी आइन के खिलाफ कमेटी बनेगी, जो बादशाहों ने आइन बनाया है, जो वसीयतनामा लिखा है, उसके खिलाफ बनाई जाएगी। तो ये नाजायज कमेटी है, लिहाजा नाजायज कमेटी कभी भी हुसैनाबाद की तरक्की नहीं कर सकती, ना उसको तरक्की दे सकती। हमारा जब ये मानना है, अगर तुम नहीं वापस कर रहे हो, भाई जो भी उसकी मंफियत हो रही है, हम लोग नहीं कह रहे कि हमको दे दिया जाए, हम खाएंगे। भाई जो भी लाखों की करोड़ों की आमदनी हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो उसके वर्षा हैं, जो शिया कौम की बहबूद के लिए एजुकेशन पर काम किया जाए। अभी शिया कौम के बाद कितने हजारों ऐसे गरीब खड़े जिनके पास घर नहीं है, तो इतनी बड़ी जमीनें खाली जो पड़ी हुई है हुसैनाबाद की, क्यों नहीं इसकी जमीनों के ऊपर और इसके जमीनों के ऊपर गरीबों को बसाया जाता? क्यों नहीं इस कब्र से बसाने के लिए वहां के ऊपर काम किया जाता? खान की करबला की तरफ चारों तरफ कब्जे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप वहां इजाजत देते चले जा रहे हैं। और कौम के लोग जो है जिनका बनाया गया है, शान वक्त जितने बड़े ट्रस्ट बनाया है, और कौम के नौजवान बेरोजगार है वहां के ऊपर, कितने बेघर है वहां के ऊपर, अगर सबको 300, 400, 100 स्क्वायर फीट एक आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर दे दिया जाए, तो उसकी वहां के ऊपर वहां पर मातम भी होगा, वहां पर मजलिसें भी होगी, महफिल भी होगी, जो अपने कौम वालों को लगेगी, गैर को कैसे रख सकती, कम से कम क्या लगेगी? आज आपने सज्जादिया के अंदर हजारों लोगों को बसा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज नमाज जुमा भी वहां हो रही है, आज वहां पर मातम भी हो रहे हैं, मजलिस भी हो रही। आप जाकर देखें उसका हाल क्या है। मालूम पड़ता है कि वहां के ऊपर शिया बस्ती है, जहां के ऊपर आपकी अजान भी हो रही है और विलायत का ऐलान भी किया जा रहा है। तो ये कामयाबी नहीं है तो और क्या है? इसी सूरत से जितनी जमीनें हैं उन सब के ऊपर हमारा मुतालबा यही है कि वहां के ऊपर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो बादशाह का बनाया हुआ है मंशा वाक़िफ़ के मुताबिक वहां पर बनाया जाए। और जनाब से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उलमाए किराम से, आज और कल 3 दिन के अंदर आप सर्वे करें। जनाब की क़यादत में उलमा की टीम जाएगी और अव्वल से लेकर आखिर तक हुसैनाबाद की जितनी जायदाद है उसको अपनी आंखों से देखे कि हुसैनाबाद का क्या हाल है, छोटे इमामबाड़ी के पीछे पीछे क्या हो रहा है, शराब अंदर आ रही है, बोतलें अंदर लाई जा रही है, खबरें मिल रही हैं, और गैरत यहाँ तक उन सरकारी मौलवियों की मर गई है कि बड़े इमामबाड़े के अंदर रक्स हो रहा है और वो ये कह रहे कल में जमात को ना कहना चाहिए, हम लोगों से क्या लेना देना। अरे रक्स हो रहा है, हरामकारी हो रही है, ये इमाम हुसैन का भी मामला है, तो क्या कल में जमात करा रहा है? इसके अंदर तुम घर में बैठे रहोगे। ये हो सकता है आप देखें कि गैरत कितनी मर गई है और कितना तासुब, इस हद तक तासुब आगे न बढ़ाइए कि कौम के जो वाजिबात हैं उसके ऊपर आप कहने लगे ये कल में जवाब कराएं, ये फला मौलवी कराएं। जो कौम के वाजिबात हैं, जो दीन के वाजिबात हैं, उसमें डट कर इमाम हुसैन की तरफ आगे आ जाइए ताकि पता चल जाए करबला वाले कौन है या नहीं। इसके अंदर क्या बात है कि वहां रक्स हो रहा है, आपके सामने वीडियो आ रही है, और कर रहे बड़े इमामबाड़े के अंदर, दालान के अंदर, शानशीन के अंदर, और हम कह रहे हैं, तुमसे कह रहे ना कौम की ठेकेदारी तो कल में जवाब दे ले ली। अजीब बात है जीजाने गिरामी, कितना गैरत मर चुकी है, तासुब मर चुका है। सही है, हम तो कह रहे आप आगे आइए, तहरीक को कितनी बार कहा कि आगे बढ़ाइए, हम और आप पीछे आपके ना चले तो कहिएगा नुक्ते हराम है। और अगर आप हक के लिए आगे ना बढ़े और आजादी के लिए आगे ना बढ़े, शरीयत के नाम आगे बढ़े, तो आप नुक्ते हराम है।
बड़ी बात है। सही, जब ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जब ये मामवाड़ी नहीं रहेगी तो हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी और कर रहे हैं हम, खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहरूदे के आलम में इतना ज्यादा क्या बताऊं, हाथ के पेशेंट भी हो, लोग समझाते हैं, जनाब समझाते हैं, उलमा समझाते हैं, इतना चीज ना बोलिए ना बोलिए, मैं भूल ही जाता हूं कि हूं कहां पर। शायद मेरी आखिरी आरज़ू इसी में तकरीर में खत्म हो जाए। ऑपरेशन जब हुआ था तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि अब तकरीर तो कभी करार कीजिएगा और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तकरीर कीजिएगा। और करें तकरीर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जब बाईपास हुआ था तो शायद डॉक्टरों को दिखाते तो कहेंगे ये मेरा पेशेंट ही नहीं था, वो कहीं मेरा पेशेंट ही नहीं। डॉक्टर तिरंग को भी हैरत हो गया है ये हो क्या गया। और करें बस गुजारिश, हम दरगाह में खड़े हैं, हज़रत अब्बास को गवाह करके कह रहे हैं, हम जनाब को आए इसलिए मानते हैं अज़ीज़ान इकरामी क्योंकि इनको शुजा पाते, सच बता रहे, इनको शुजा पाते हैं, किसी से बात करने में नहीं डरते। और कर रहे हैं किसी से बात, हमारे माननीय पूर्व और कर रहे हैं प्रधानमंत्री से जब बात हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गवासी हैं, और कर रहे बात हो रही थी तो कहने लगे सुना है आप कहते हैं ये हमारा लखनऊ में, ये हमारा लखनऊ में, ये हमारा लखनऊ में, ये हमारा लखनऊ में, एक दिन तो आप पूरे हिंदुस्तान के लिए कह देंगे ये हमारे लिए। तो जनाब ने कहा, जनाब ने सरकार जहां पर आप आए हैं राजभवन में बैठे हुए हैं ये भी हमारा है। शेर बुढ़ा नहीं होता, शेर शेर रहता है, जवानी में भी शेर रहता है, जवानी में भी शेर रहता है, बचपने में भी शेर रहता है, बुढ़ापे में भी शेर रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम लोग शेर के पीछे चलने के आदी है, ईगलों के पीछे नहीं चलते हैं। शेर होता चलाओ, जो गलत कार्य हो ये चलाओ। अगर शेर के बच्चे हो तो आके कौम के दरमियान आकर तहरीक चला कर दिखाओ, खाली भाषण बाजी और पीछे पीछे लगाओ और वो तुम्हारे पीछे चलेगी। हम शेर के मारने वाले हैं, किधर के मारने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ओम के गद्दार मौलवियों पर, ओम के गद्दार मौलवियों पर, हमारी भी हिदायत फरमाए, अगर हमारी कोताही है तो मेरी भी हिदायत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बस दो जुमले और, इसलिए आप एकजुट हो जाइए, अपने कायद को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए याद रखिएगा, हो सकता है कहीं में सिफात कायदाना पाए जाते हूँ, लेकिन याद रखिएगा प्लेन एक ही आदमी चलाता है, ट्रेन एक ही आदमी चलाता है। अगर वो भी हम भी चलाएंगे, वो भी आके हाथ लगाते हम भी चलाएंगे फ्लाइट, हम भी चलाएंगे तो ये पूरी फ्लाइट लड़के रह जाएंगे और सारे मुसाफिर बन जाएंगे। सही है, इसलिए याद रखिएगा कायद एक ही होता है। आप हैं, आपको भी मानते हैं, आपकी इज्जत है, आपका अधिकार है, सब आपको के ऊपर है, लेकिन कौन खुद जानती है कि हमको राह रास्त पर आजादी के लिए और आपके लिए किसने जगाया, किसके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। आज इतना बड़ा शिया कॉलेज जो हमारे पास मौजूद है, ये किसके बुजुर्गों की कोशिश से मौजूद है, किसके बुजुर्गों की कोशिश से मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे उलमा ने कोशिश की थी जो थे, और करने के बाद आप हसन साहब लाहौर उनके साथ जीते थे, सबने कोशिश की बनाई। हम इस पर अब आगे बढ़े। दरगाह पर कह रहा हूं कि जो जमीनें खाली है, जो सबसे बड़ी खाली है, अगर शिया कालीन बना था
آپ کے بزرگوں نے بنایا تھا. اب ہم یہاں کے اوپر علی ابن ابی طالب اور امام جعفر ثانی کے نام پہ یونیورسٹی بنا کر رہے گے. یونیورسٹی بنا کر رہے گے. اگر آپ تائید کرتے ہیں درگاہ کے سامنے سب ہاتھ ملا کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آپ یونیورسٹی بنائیں گے امام صادق کی؟ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، اپنے کرسی سے کھڑے ہوئیے، کھڑے ہوئیے کرسی سے اور اعلان کیجیے ہم یونیورسٹی چاہتے نہ بنے تو بعد میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر یونیورسٹی امام صادق کی آپ نے عہد کر لیا ہے جیسے شیعہ کالج بنا ہے اسی صورت سے یونیورسٹی امام صادق بنا. اس لیے اگر آپ نے ایجوکیشن کا کام کر لیا، آگے بڑھ گئے اور کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو ہرا نہیں کرے. آخری بات وصیت کی یہی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت جھلکنا چاہیے اور امام اللہ اور امام زمانہ کی خوشنودی ہونا چاہیے. ابھی تابوت کا جو ٹائم پتہ چلا تھا پہلے اور شاید پہلے ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا. اب جو جناب سے مشورہ کیا گیا، آپ نے بتایا، اس کے بعد 12 اس وقت کو قبول کیا گیا کہ نماز کے بعد تابوت اٹھے گا. اس میں ایک گزارش جو ہے میری وہ جناب سے التماس ہے، وہ یہ کہ جس صورت سے مسجد کوفہ میں صبح نماز ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے، نماز جماعت کے بعد گلی کا تابوت برآمد ہوتا ہے، تو اس تابوت میں بھی مجلس سے پہلے پوری وہاں کے اوپر کیمپ کے اندر روزے کے سامنے نماز جماعت 2 رکعت ہونا چاہیے اور 2 رکعت نماز جماعت 2 منٹ کے اندر ہو کر مجلس ہونا چاہیے جس طرح سے، تاکہ یہ پتا چلے کہ کس کا تابوت اٹھا رہے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے امیر المومنین کا تابوت اٹھا رہے ہو. حسن مرزا کے نہیں، ان کا تابوت نہیں ہے یہ. حسن مرزا صاحب سے منسوب ہے، ان کے درجات بلند، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن یہ تابوت منسوب ہے مولا کی طرف اور امام وقت شامل ہوتے ہیں تو امام وقت پر پہلے نماز پڑھے گی. اگر امام زمانہ اٹھانے آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ نماز پڑھیں گے. صحیح ہے؟ جس صورت سے سربت لگی کہ بیٹا حسن پہلے نماز کو تمام کرو، نماز تمام کرانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کریں گے. یہاں کے اوپر بھی 2 رکعت نماز، صحیح ہے، 2 رکعت نماز ہو جائے اور اس کے بعد مجلس ہو تو یہ قائم ہو جائے گا کہ مولا سے پوچھا ابن عباس نے، اے آقا آپ یہاں پر مصلی بچھائے ہیں، جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، جہاں پر نیزے چل رہے ہیں، یہاں پر نماز کا وقت ہے کیا؟ تو مولا نے کہا ابن عباس اسی نماز کے قیام کے لیے تو لڑکی جا رہی ہے. صحیح ہے؟ تو ہماری ابتدا بھی نماز سے ہے، انتہا بھی نماز سے ہے اور اہل بیت بھی نماز میں ہے اور ان کا ذکر بھی نماز کے اندر ہے. ان گزارشوں کے ساتھ قوم سے ہماری اپیل ہے کہ پوری طرح متوجہ رہیں اور ہم لوگ کی بات پہنچی گئی ہوگی شاسن و پرشاسن تک، ڈی ایم صاحب تک کہ اب شیر پھر سے کروٹ لے رہا ہے. اس لیے خیر اسی میں ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے پہلا راستہ بات چیت ہے. بات چیت کے ذریعے سے اپنے امور کی اصلاح کر لیں تاکہ وہ نوبت نہ آئے کہ ہم کو ویسی تحریک چلانا چلے کہ جیل بھر دو اور اس کے بعد جیل سے بھر دیے جاتے ہیں تو ڈی ایم صاحب آ کے معافی مانگتے ہیں، ارے آپ نہ بیٹھیے، اب ہمارے پاس جگہ نہیں، اب یہاں پر جگہ ختم ہو گئی ہے. لہٰذا ان سب باتوں سے پہلے اگر یہاں پر بات چیت ہو جائے گی تو ہم لوگ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اور ہماری یہاں پر جتنی انجمنیں ہیں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی بات اس لیے اول ہے کیونکہ آپ زینت اعضاء ہیں، آپ کی وجہ سے عزاداری ہے، آپ ہم کو جگاتے ہیں، آپ موزن ولایت ہیں، آپ سب کا بڑا وقار ہے، آپ سب کا بڑا رتبہ ہے. ہمارے قوم وہی پھر ہے، تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، تو چپ ہے پھر شیر اسی چاند سے ترانہ رہ جائے گا تاریخ میں مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پنڈا میں چلی ہو لازم ہے کہ ہر شخص حسین
سيدنا ونبينا وشفيع المسلمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الإمام حسين الإسلام في البلاء وما من ناصر يذكرنا وما من مبين يذكرنا صراط سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انجمنوں کو یہاں کے اوپر مزاران صدروں سے جیسی صاحبان یہاں سے آئے ان سب کا بے انتہا شکریہ کی آواز کو علماء کی آواز کو یہاں کے اوپر تشریف لائے ہیں اور زبردست اتحاد اور اتفاق کا ہم نے مظاہرہ فرمایا ہے جس کے ساتھ نبی کرام علیہ السلام سے اس اطلاع سے پہلے تمام انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں آج تمام انہوں نے ساتھ کرتے ہی ہیں اور انشاءاللہ انجمنوں کی شرکت پہلے بھی کامیابی کی ضمانت رہی ہے اور آج بھی ان کی شرکت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے جو شعر کہنا چاہیے تو شعر یہ ہے جو ہمارے حسین صاحب ہیں جو واقعی گرج رہے تھے اور جبکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے پورا آپریشن سینے کا ہو چکا ہے اور اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت دھیمے دھیمے بولیے اور یہ کبھی احتیاط نہیں کی پوری طاقت ماشاء اللہ تقریر فرمائی ہے اور یہ مولا کی مدد ہے کی وجہ سے وہ ماشاء اللہ صحت مند ہے اور شرانجل صحت مند ہے بارات تحریکیں چل رہی ہیں ابھی اور آپ کی تحریک ابھی جاری و ساری ہے اور عباس صاحب کربلا اس طرح اور دیگر ہمارے وفاق ہیں وہ بھی ہمارے نہیں آئے ہیں اور لیکن الحمدللہ بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہمیں ملی ہیں کہ جیسے جاجیا ابھی جو وہاں کے اوپر جنگل میں تقریباً 20 بیگھے زمین وہاں کے اوپر ہمارے قبضے میں آئی اور قوم کی مدد سے آئی اور وہاں پر جو قبضے جس کا قبضہ تھا لینے کو کرنا جن کے بعد آپ کے کھیل کرنا لیکن الحمدللہ قوم کی مدد کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر کو واپس لے سکے اور الحمدللہ اس کی ہمت بھی نہیں کہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں قدم بھی رہ سکے کیونکہ قوم ہمارے ساتھ تھی اور امام زمانہ کی مدد ہمارے ساتھ تقریباً 2000 شیوں کے وہاں کے اوپر ہے جہاں ماشاء اللہ نے مکانات بنائے ہیں آپ کچھ گورنیاں بھی وہاں بھی ہوئی ہیں ہمارے اپنے طرف سے ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے بہت ہی کم نظر مولا دے کر وہاں پر پلاٹ دیے تھے تو بعد ہمارے بھائیوں نے بہت لمبی رقم دے کر بھیج دیے تو ایک یہاں بہت ہی خبیص پترکار ہے جو وہ ہے بلیک میلر ہے پترکار کہتا ہے بلیک میلر ہے بلیک میلنگ کرتا رہتا ہے اس سے ایک تصویر چھاتی صاحب 3 منزلہ بلڈنگ کی دیکھیے کبھی جواب نے امیروں کو دی ہے غریبوں کو دی ہے تو اگر اس کی اصل دیکھی جائے تو کسی کو بیچارے غریب کو ہم نے بہت کم پیسوں میں دی تھی اس نے بیچ ڈالی اور اس کے بعد پھر پیسے والے تو ہم کو بلڈنگ بنا دی تو اس میں میری خطا کیا ہے بھائی میرا قصور کیا ہے میں نے تو بہت معمولی نظر مولا لے کر دیا تھا وہ لوگ بیچ رہے ہیں تو اس سے ہمارا کیا حصول ہے اور پھر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں جب ان کو قانونی قدم اٹھاتے ہیں تو یہی خبیث پترکار آ جاتے ہیں شیعوں کا ظلم کر رہے ہیں لیکن شیعوں کو مقدمہ قائم کر رہے ہیں تو اس میں مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بہت سے لوگ ہیں غریب کی آباد ہے اور کوئی سے بیچارہ نہ تھے بیکاری اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کریں تو پھر یہی آ جاتے ہیں ان کی حمایت کرے ارے صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں لیکن وہ ہماری کوشش الحمدللہ ہم پر کوئی آبادی اور بہت بڑے 80 کوارٹر وہاں بنے بالکل مفت میں غریبوں کو دیے گئے انشاءاللہ بھی بنا ہے وہاں پر انشاءاللہ اور بھی کوارٹر بنے جو وہاں غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو بالکل مفت انشاءاللہ دیے جائیں گے سلمان ہے اس
इसी तरह से आप देखें सबसे बड़ी जो हमारी मंजूरी का जो है वह है वक्फ हुसैनाबाद। वक्फ हुसैनाबाद जो है वो बहुत तकरीबन 20 से पहले कमेटी बनी। वो कमेटी बनी किस वजह से आपस में लड़ाई हुई तो कमेटी वो खत्म हो गई। उसके बाद डीएम साहब ने उसका कब्जा कर लिया और तकरीबन 23 साल चुके डीएम साहब का, एडीएम साहब और कब्जा और बिल्कुल नाजायज कब्जा है, बिल्कुल नाजायज कब्जा, तो कोई हक उस पर कब्जे का नहीं है। जब उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में जवाब दिया कि कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं था, तो मैंने देखभाल अपने ऊपर खुद संभाल लिया। कोई आप पूरे शियों के ठेकेदार बन गए, वहाँ जो आपने बड़े बड़े कब्जा कर दिया और 23 साल से कोई हिसाब नहीं दिया गया। जिस वक्त हमने दरवाजों पर ताले लगाए थे 2015 में जब दरवाजों पर ताले लगा कर बंद किया था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बेपर्दगी होती थी, बहुत ज्यादा तहरीरी होती थी, बहुत ज्यादा बेईमानियां, तो उस वक्त वहाँ के एडीएम साहब सेक्रेटरी उसका बयान आया था। मेरे पास कटिंग मौजूद है, अखबार की कटिंग मौजूद है। उसका बयान आया था कि कंगरेजवाद के धरने से और तालेबंदी से वक्त का 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। 5 लाख जमाने का, यानी ये 2015 आज से 8 साल पहले की बात है। उसका बयान महफूज अखबार में आया था कि वक्त का बड़े खाली बड़ी बड़े महामारी में तार लगाना कि वक्त का 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। यानी उस वक्त 5 लाख रुपए रोज की बड़ी महामारी की आमदनी थी और आज टिकट दुगना हो चुका है उसका। तो 15 में टिकट की कीमत थी, आज दुगनी हो चुकी है। तो 5 लाख डबल की तो 10 लाख हो गए। इसका मतलब ये है कि खुद उनके बकौल इस 10 लाख रुपए रोज की आमदनी बड़ी महामारी की है, लेकिन एक पैसा इसी ऊपर नहीं खर्च हो रहा। एक पैसा जो आसिफुद्दौला की औलाद उन पर खर्च नहीं हो रहा, एक पैसा खर्च हो रहा, सब आपस में फुट हो रहा है, सब खा रहे हैं आपस में। और आप याद रखें इस वक्त डीएम साहब गाड़ी पर चल रहे हैं, काले रंग की सियाह कीमती गाड़ी, वो गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, हुसैनाबाद ट्रस्ट की गाड़ी, हुसैनाबाद ट्रस्ट की गाड़ी है कि जिसके ऊपर डीएम साहब चल रहे हैं और करोड़ों रुपए बहाने की क्या नहीं है, एक पैसा जिसके पर खर्च नहीं हो रहा है। लिहाजा मैंने बताया अभी अब बाकी करबला के सिलसिले में तहरीक चलाई हमने, तो डीएम साहब से मिले तो उन्होंने कहा कोई रजिस्टर्ड वक्फनामा लाइए आप बाकी करबला, रजिस्टर्ड वक्फनामा लाइए बाकी करबला का। मैं वकीलों से मैंने पूछा तो ये वक्फ है 1844 का, वक्फ है 1844 का और रजिस्ट्री शुरू हुई है 1904 में। तो 1844 से कोई रजिस्ट्री होती ही नहीं थी, तो हम लाए कहां थे? इसका मतलब है डायरेक्ट बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, रजिस्ट्री लाइए। 1904 में रजिस्ट्रियां शुरू हुई है। मैंने तो सीनियर वकील तो उससे पूछा, उनका 1904 में रजिस्ट्रियों का कानून शुरू हुआ है, उससे पहले रजिस्ट्री का कानून नहीं था, बल्कि किसी आलिम की दस्तखत वक्फनामे ही पर रजिस्ट्री मानी जाती थी। दस्तखत कर देते थे वक्फनामे पर, उसी को रजिस्टर माना जाता था। तो इसका मतलब आप तरीहन बेवकूफ बना रहे हैं जो उस जमाने की रजिस्ट्री मान रहे हैं आप, जब रजिस्ट्री होती ही नहीं थी, रजिस्ट्री का कानून ही नहीं था। तो आप अब्बास बाकी करबला के लिए कह रहे हैं उस वक्त तक वक्त नहीं मानेंगे जब तक उसकी रजिस्ट्री आप लेकर ना आए। तो मैं कहता हूँ अब्बास बाकी करबला की रजिस्ट्री आप हमसे मांग रहे हैं, बड़े इमाम मालिक की रजिस्ट्री आप पेश कर दीजिए। बड़े इमाम मालिक के किस हद से आप कब्जे में है उसको, रजिस्ट्री आप पेश कीजिए, कोई डीड आप पेश कीजिए। बड़े इमाम मालिक की न तो कोई डीड है, तस्दीक है, न कोई वक्फनामा है। आप अब्बास बाकी करबला के लिए कहते हैं क्योंकि वक्फनामा नहीं है, लिहाजा ये औलादों के लिए वक्त है, ये औलादों की वक्त है। तो जब बड़े इमाम वाले का कोई वक्फनामा नहीं है, तो बड़े इमाम वाले को भी आसिफुद्दौला की औलादों के लिए वक्त कीजिए।
अभी तो कह रहे हैं कि अगर वक्तनामा नहीं है, तस्दीक नहीं है, तो और डालो कहाँ गए? आइए आपसे वो दौलत की और डालो काम दीजिए, उन्हीं को उनका हक मिलना चाहिए। या तो हमारा मुतालिबा ये है कि ये यहाँ से हुसैनाबाद ट्रस्ट से ये डीएम साहब और तमाम अफसरान जो वहाँ को फॉरेस्ट होल्ड है वो खत्म हो, उसके बाद जो रॉयल फैमिली वाकई रॉयल फैमिली से हैं, जिनके रगों में शाही खून दौड़ रहा है, उन्हीं को जो है ये वक्त से मुक्त किया जाए और उन्हीं के जरिए से इसकी आमदनी आपस में तकसीम हो और कौम के ऊपर वो खर्च हो। याद रखिए कि इस वक्त तकरीबन 1 महीने की आमदनी बड़े इमाम बाड़ी की 10 लाख रुपए रोज के हिसाब से जोड़िए तो 3 करोड़ महाना की आमदनी है। जब 3 करोड़ महाना की आमदनी तो सालाना आमदनी कितनी? 12 क्या है? 36 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी बड़े इमाम वाले की है। अगर शिया कौम के ऊपर खर्च हो तो शियाओं का स्टैंडर्ड कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो सब तुम खा रहे हो तो शियों को मिलना चाहिए, यही हमारी तहरीर है कि सब शियों को मिलना चाहिए। तुम्हारा तुम तो खाकर पोटे हो रहे हो और गाड़ियां तुम्हारी है और नई गाड़ियां आ रही है, वक्त को होता रहा। यहाँ तक मुझे मालूम, अभी कंफर्म नहीं है, ये मालूम हुआ है कि मुहर्रम में जितना भी पुलिस प्रशासन पर खर्च किया जाता है वो सब वक्त हुसैनाबाद की आमदनी से खर्च होता है। सब कुछ जितना भी पुलिस प्रशासन के ऊपर 2 महीने 8 दिन पर खर्च किया जाता है, ये गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है, ये वक्त हुसैनाबाद से पैसे लिए जाते हैं, ये खर्च किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मुहर्रम पर ये जो कुछ भी खर्च होता है इस पे गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है, हमारा ही खर्च होता है और हमारे ही वक्त का खर्च होता है। लिहाजा हमारी तहरीक ये है कि इनके ऊपर से हटाकर इन तमाम अफसरान को ये शियों के सुपुर्द किया जाए और शियों की तमाम जायदादें मिले। आप देखें कि जो डील है वो छोटे इमाम बाड़े की है, बड़े इमाम बाड़े की कोई डील नहीं है, बड़े इमाम बाड़े का कोई वक्तनामा नहीं है और छोटे इमाम बाड़ी की डील में मौजूद है कि उसमें तालिब इल्मों को वजीफा दिया जाएगा। कोई वजीफा नहीं मिल रहा है, परसों से कोई वजीफा नहीं मिल रहा है। तो डील में ये है कि वक्त उसके जरिए से वो होगा, कुरान दादी होगी और जियारतों के लिए भिजवाया जाएगा। मुझे याद है बचपन में मेरे घर में मेरे क्या खातून रहती थी, किसी मुझे पाला था, कुरान दादी उनका नाम निकला था। आज से तकरीबन ये 45-50 साल की बात है, मैं बता रहा हूँ कि कुरानदानी उनका नाम निकला था और तकरीबन 50 साल पहले उनको 300 रुपए बतौर किराया मिले थे। 50 साल पहले के 300 आज के 3 लाख के बराबर है। तो वक्त हुसैनाबाद से जियारतों को भेजा जाता था, वक्त हुसैनाबाद से तुल्लाब को वजीफा दिया जाता था, वक्त हुसैनाबाद से यहाँ के ऊपर जो गरीब है उनको मदद दी जाती थी। लेकिन वो सब जितना है वो सब माशाल्लाह अफसरान मौज करवा रहे हैं, वो सब उसका पेट अपना जहन्नम में भर रहे हैं। लिहाजा हमारी तहरीक है कि शियों के बड़ा इमाम बाड़ा शियों के सुपुर्द किया जाए। छोटे इमाम बाड़े में जो डील है उसके लिहाज से काम हो, वो अपनी लिहाज पर है लेकिन डील के लिहाज से काम होना चाहिए। और बड़ा इमाम बाड़ा जिसमें सबसे ज्यादा आमदनी है वो शियों के सुपुर्द हो, वरना हम डीएम साहब के घर का घेराव इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में शिया पहुंचेगी वहां पर। उस वक्त हम बात नहीं हटेंगे जब तक डीएम साहब हुसैनाबाद से इस्तीफा नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, मोहम्मद और नहीं वक्त देना है आपका 2-3 मिनट और देना है। इसके अलावा अमेठी की करबला के सिलसिले में निवेदन करना है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नाजात कब्जे हैं, वहाँ पर मौलाना सोपोर की मिंबर है, मेरी गुजारिश है कि पता मालूम हो कि किस अर्थ जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा 420 कौम का कि जो 1000 नटवरलाल बड़े दिनों पैदा हुआ था
वो उसने वहाँ कह दिया कि मेरी दादी की है, मेरी दादी की यहाँ ये करबला, मेरी दादी से पूछा भाई दादी की कब्र कहाँ है, तो बता नहीं पाया कब्र कहाँ है उनकी दादी की, तो बता रहे दादी की। और वहाँ मगर सैकड़ों औरतों से उसने 1500 रुपए लेकर और जो फार्म लिए लाखों रुपए था तो बलून पे कमा लिए, तो नटपर नाले कमा लिए हैं। और अब यहाँ पे पिछले जहाँ पे 4 साल की जलसा हुआ था तो उसके कुछ कारनामे आपके सामने बयान किए थे, लेकिन एक कारनामा रह गया था जो नवानी विधान में बयान नहीं कर पाया था। कारनामा ये था कि उसने 2 कमरे बनाए थे, वो दोनों कमरे के बेड डाले उसने, 2 छोटे-छोटे कमरे बनाए थे, इसमें बकरियां पली हुई थी, बकरियां पली हुई थी। और उसने मुफ्ती साहब को हमारे वहाँ मुफ्ती साहब के दफ्तर में लिखा था कि हमारे यहाँ तालिब इल्म की बड़ी तादाद में रहते हैं, उनके खर्चे का इंतजाम दे दीजिए। तो बकरियों के तालिब इल्म भी बताया कि उसने वहाँ से पैसे लिए थे, और कुछ बकरियां बीमार हो गई तो फिर उसने सब दिखाया कि तालिब इल्म मरीज हो गए हैं, या तो उनके इलाज का पैसा भेज दीजिए। तो जब 2-4 बकरियां मर गई तो कहा कि तालिब इल्म का इंतकाल हो गया है। बाद उसी दिन की बात है, उसी दिन के बाद से एक बूढ़ी खातून और एक साहबजादी आई, कहा कि इसने अपने बड़े भाई से मेरी बेटी की शादी करवाई, और ये कह कर शादी करवाई कि उसका सिर्फ 20-22 का छोटा भाई है और सिर्फ उसका 20-22 वर्ष का है, और उस पर बनाई कि उनकी बेटी 16 वर्ष की होती। और उसने किसी मजमे में उसने मजलिस दिखा दिया कि ये मेरा भाई है, इसीलिए किसी 420 में एक 20-22 वर्ष के लड़के कहेंगे कि ये मेरा छोटा भाई, इसी शादी होना है। बाद में वाले दूल्हा बनकर आया वो, और जब चेहरा था तो एक बहुत बूढ़ा निकला उसमें, जिसका सिर्फ उसको 50 साल का था। कहिए क्या, अरे कहा किसी को दिखाया था आपने, कहा वो तो भाई था ना, वहां तो देखने को गलती की होगी, मैंने बताया ऐसी बता। और उसके बाद लाखों का जहर इसने लिया, और बाद में उसकी शादी पहले तो हो चुकी थी, सऊदी अरब में रहता था, सारा उसका जहर का लाखों को सभी खा लिया। और उसके बाद वो बेचारे को तलाक भी नहीं देना, बेचारी आई रोती हुई कि हमने FIR कर दी कि हाथ जोड़ा है कि हमारा पासपोर्ट फंस गया है, आप मेरा नाम FIR से वापस ले लीजिए। मैंने कहा हल्की तो वापस नहीं दीजिए, जब तक जेल में भिजवा दीजिए। बहुत बड़ा 400 भी नहीं, और दुनिया अभी हुई है। अभी तो मैं दिल्ली गया तो बाबा बाबू मस्जिद बहुत बड़ी वहां पर है जमजा में, वहां पर इधर बहुत बड़ा बैनर लगा रखा था, कहते ठीक ही करबला के लिए मुझे चंदा दीजिए। अरे दिल्ली में बैनर लगा रखा था,